Shakespeare's romances or tragicomedy. Romances, almost all the dramas can come in the category of romances to certain extent. Means romantic elements can be there in almost all types of dramas, be it tragedy, be it comedy, tragicomedy, histories. So the concept of romance means where he has diverted from his conventions or the prefixed conventions. This is one of the elements of romantic literature or romantic urge. When the writer tries to do something new, do something unconventional, do something experimental, do something according to the popular taste, so the writer becomes romantic. However, romances as a pure form of literature भी अगर आप देखते हो तो there are three types of romances we can come across: prose romances, verse romances, and dramatic romances. Dramatic romances means that the way we are dealing with right now, the kind of drama that is in the form or that follows the concept of romance. Romance, as we have been already telling you many times, that it is a story of a character who is slightly unrealistic, more heroic, given a task in the beginning, and then he undertakes the task. The task involves many challenges, and ultimately crossing all the challenges, he comes to the final destination and gets the work done. The work may be rescuing the beloved in some cases, involving love, music. The task may be rescuing or capturing some object of national importance, or it can be some task which decides the fate of the community or fate of the किंग. कैरेक्टर को लेकर के रोमांसेस में ये कैरेक्टरिस्टिक आएगा, फिर सेटिंग को लेकर के आएगा, फिर इंक्लूजन्स ऑफ सम अदर एलिमेंट्स जस्ट लाइक पैरानॉर्मल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, और लव अफेयर डीलिंग विद इन आइडियल सिचुएशन, तो वो भी आ जाएगा. तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिकली हम रोमांसेस में कंसीडर करते हैं. एज फार एज बीइंग अ रोमांस, or as far as the drama being a romance or a dramatic romance, particularly in the hands of शेक्सपियर, तो हम उसमें सबसे पहला जो देखते हैं उसको ट्रेजिक कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करते हैं. ट्रेजिक कॉमेडी में जो कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांस का सबसे बेहतर तरीके से आया है, वो भी ट्रेजिक कॉमेडी जो प्योर ट्रेजिक कॉमेडी है जिनको हम लेते हैं, उसमें कौन कौन सी आती है. एक तो सिम्बलिन, द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट. ये प्योर रोमांसेस की कैटेगरी में आ जाती है, बिकॉज दीज थ्री comedies or tragic comedies, they fit in all the characteristics of a romance. जो भी एक पर्टिकुलर रोमांस से आप एक्सपेक्ट करते होगे, वो सारे कॉन्सेप्ट, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इन तीन में आपको मिल जाती है. तो ये बढ़िया एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. अदरवाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांसेस कैन बी फाउंड in some or other way in almost all the plays of Shakespeare. पर्टिकुलरली कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी में तो मिड्समर नाइट्स ड्रीम में भी एलिमेंट्स हैं जो रोमांटिक, यानी रोमांस के एलिमेंट्स हो सकते हैं. एज यू लाइक इट में भी आपको मिल सकता है. एज यू लाइक इट में भी आप अगर नोटिस करो तो क्या है, वॉयला वॉयला वॉज इन द गाइज ऑफ अ बॉय एंड देन नो वन कुड नोटिस थ्रू आउट द प्ले. हाउ कम इट इज पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड, इन द normal circumstances, that a person who is disguised as a woman or as a man, a woman disguised as a man and man disguised as a woman, and then all the people are not able to identify. Had it been the case with one person, two persons, three persons, four people, or a group of people, it could be justified. But almost all the characters are even her brother Sebastian. तो मतलब ये दिस सीम्स टू बी वेरी इम्प्रोबेबल समटाइम्स. तो जो इम्प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो रोमांस का ही कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए. चीजों का ऑल ऑफ अ सडन द थिंग्स चेंज टेक प्लेस. कोई सीन्स में जो है बीच में लैप्सेज भी हैं समटाइम्स, और अनएक्सपेक्टेड जो टर्निंग ऑफ द इवेंट्स ये भी आपको मिल जाती है. तो ये क्या है कि व्हेन द थिंग्स डोंट सीम टू बी प्रोबेबल और इन अ लीनियर वे, सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रोमांसेस के.
आप मिडसमर नाइट्स को देख लीजिए, पूरी स्टोरी जो है वो एक ड्रीम लाइक सिचुएशन और ड्रीमी वर्ल्ड में ही है वो। तो ड्रीमी वर्ल्ड इस तरह के रोमांसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको सपोर्ट करती है। सो हेयर इन दिस पर्टिकुलर lecture we'll discuss these three tragicomedies which are termed tragicomedies in the real sense of the term. So the Tempest, Cymbeline, and Winter's Tale. Now, first of all, let us discuss uh, who was or what was the sources or motivating factor for Shakespeare. ऐसा तो है ही शेक्सपियर के बारे में, मतलब he borrowed everything from the contemporary sometimes or the foreign influences. So, was there anything in the contemporary scene that could have motivated or instigated or provoked or inspired, particularly not provoked or instigated, to write these romances or particularly bring the concept of tragicomedy? तो उसमें आपके दो नेम्स आ जाते हैं, इनको आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। ब्यूमोंट एंड फ्लेचर, ये आपने नाम डेफिनेटली सुने होंगे। Beaumont and Fletcher, in fact, it is also said that Shakespeare collaborated with these two writers in some of the plays. जो ऑथरशिप है वो ऑथरशिप शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज की डाउटफुल समझी जाती है, और सम प्लेज आर एस्क्राइब्ड टू हैव बीन रिटन बाय शेक्सपियर इन कोलैबोरेशन ऑफ दीज राइटर्स। तो ब्यूमोंट एंड फ्लेचर के साथ तो कई बार है ही। However, as far as these two writers are concerned, so they have always collaborated. इन्होंने लगभग more than 100 plays they composed, and all these plays were in collaborations only. अब ऐसा नहीं है, मतलब it is not big task for Shakespeare to compose 37 dramas. In his time or the time after Shakespeare, जो Jacobean period है, Jacobean drama, उसमें तो आपके एक से एक राइटर्स थे जिन्होंने they wrote profusely. प्रोलिफिक राइटर्स थे। प्रोलिफिक राइटर्स मतलब दे रोट इन प्लेंटी। किसी के 100 प्लेज हैं, किसी के 200 प्लेज हैं। एक थॉमस फोर्ड है, क्या है उसका, शायद थॉमस फोर्ड ही है। ही रोट मोर देन 200 प्लेज। ऐसे ही है ब्यूमोंट फ्लेचर, इन कोलैबोरेशन दे प्रोड्यूस्ड मोर देन 100 प्लेज। एंड देयर इज अ लॉन्ग लाइन ऑफ जैकोबियन ड्रामेटिस्ट। जो जैकोबियन ड्रामेटिस्ट, इसी वजह से शायद वो ड्रामा का डिक्लाइन भी हुआ, बिकॉज देयर वर मैनी पीपल हु blindly followed the success of Shakespeare, the kind of success that he enjoyed, Shakespeare enjoyed. So all the coming writers, they also sought the possibility, the scope in the writing of drama. तो इसलिए जब एक ब्लाइंडली आप फॉलो करना शुरू कर दोगे तो फिर क्या होगा, यू वुड कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, बिकॉज यू आर नॉट बॉर्न शेक्सपियर। आप ऐसा थोड़ी कि शेक्सपियर हो या शेक्सपियर obtained some degree of composing drama or he had some formal training. He was a born artist, that's it. Other characters, other people may not be that skilled artists as compared to the skills of Shakespeare. Or you want to become a Shakespeare, so how come it is possible for you to become Shakespeare? They are born, not created, not trained. As such, there was a decline in drama also. ये एक particular एक बड़ा common सा cause है जो decline of drama in Elizabethan means post Elizabethan period और post Shakespearean period, उसको आप देखो तो, क्योंकि वो blind imitation थी, blind following थी शेक्सपियर की। Those who had skills composed dramas, those who did not have skills composed dramas, and not one two dramas, they composed dramas in plenty. किए चले आ रहे तो किए चले आ रहे हैं, वो एक ऑडियंस का फर्क भी वहां पे आता ही है, बिकॉज ड्रामा का एक अच्छा स्कोप उस समय था भी। तो मोर ओवर जो भी रहा हो, इन केस विल डिस्कस शेक्सपियर। सो ब्यूमोंट एंड फ्लेचर, और इन्होंने के हालांकि दे रोट मोर देन 100 प्लेज, बट द ट्रेजिक कॉमेडीज पर्टिकुलरली वो थी एक अ किंग एंड नो किंग, Lover's Pilgrimage. These two tragicomedies, the pure tragicomedies, composed in collaboration by Beaumont and Fletcher. ये लगभग लगभग इसी टाइम में कंपोज की गई थी जहां पर शेक्सपियर कंपोज कर रहे थे इनको। जो 1600 वाला जो पीरियड था, वो जो फर्स्ट डिकेड ऑफ 16th 17th सेंचुरी,
वहां पर ये काम चल रहा था, खूब चल रहा था। अदरवाइज शेक्सपियर हैड स्टार्टेड राइटिंग ड्रामा, कंपोजिंग ड्रामा राइट फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 16th सेंचुरी, वहीं से ही चल रहा था। सो एज द डेवलपमेंट्स केम इनटू फोर, और उसमें आप अगर हिस्ट्री की बात करोगे तो हिस्ट्रीज में जॉर्ज पील एंड थॉमस लॉज एंड क्रिस्टोफर मार्लो, इन तीन यूनिवर्सिटी विट्स का तो अच्छा खासा इम्पैक्ट था पूरे लिटरेचर में शेक्सपियर की। क्योंकि जो हिस्ट्री के बारे में भी इनको आप कह सकते हो कि दे क्रिएटेड हिस्ट्रीज, हिस्ट्री प्ले, एक्सपेरिमेंटेड विद द हिस्ट्री प्ले विच शेक्सपियर फॉलोड। दे introduced blank verse which Shakespeare followed, particularly Christopher Marlowe, and they composed histories and tragedy. Tragedy का concept blank verse का, और क्रॉनिकल प्लेज होते हैं, हिस्ट्री प्लेज, वहां से। तो वो ये यूनिवर्सिटी विट्स का तो अच्छा खासा इम्पैक्ट रहा ही था वहाँ की पूरी लिटरेचर पर। और उसी में फिर शेक्सपियर का ऊपर अगर ना हो तो कैसे हो सकता है। ठीक। अब शेक्सपियर की जो हम ट्रेजेडी लेंगे, वो ट्रेजिक कॉमेडी लेंगे, वो कौन सी है? दिस थ्री प्लेस particularly will deal with this lecture. Otherwise you can also take the concept of Midsummer Night's Dream, and uh, the other play was Twelfth Night. ठीक। और in some other plays we can also find the things in mid intermittently, लेकिन जो प्राइमरीली हम डील करेंगे वो यहाँ पर। क्योंकि परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल या जो सुटेबल एग्जाम्पल है उसको आप बेस बना करके एक्सप्लेन करते हो, सो थिंग्स रिमेन फोकस्ड। अदरवाइज वो एक डाउटफुल सिचुएशन बन जाती है कि यार यू से दैट दिस इज अ रोमांस एंड देन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट इन compliance with the romance or the concept of romance। अब आती कैरेक्टरिस्टिक्स, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांसेस। उसमें आपका सबसे पहले क्या होगा? सेटिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एनी प्ले, अ फैंटेसी, अ रियलिस्टिक और यूटोपियन, डिस्टोपियन, व्हाट्सएवर, जहाँ पे भी अनयूजुअल काइंड की जो थीम होगी उसको उस तरह की पर्टिकुलर सेटिंग से अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब योर कंटेंट एंड द सेटिंग should match. If the content you are showing and then the setting you are giving it, if they don't match, so it will be awkward। वही बात है, आपका रोमांटिक सॉन्ग का पिक्चराइजेशन आप किसी मार्केट प्लेस में अगर आप करोगे तो इट विल बी ऑकवर्ड। दैट्स वाई बॉलीवुड के आप गानों को रेफर कर सकते हो, जो रोमांटिक गाने होते थे पहले, जो 1980s में, वो कहाँ पे एक सीनिक व्यू, सीनिक सेटिंग, जैसे शालीमार गार्डन ऑफ गुलमर्ग में हो रही है, या फिर जहाँ पे अच्छी स्नो फॉलिंग होती है वहां पर, या फिर जहाँ पे एक जो गार्डन्स के सीन्स होते हैं, तो ये पर्टिकुलर सेटिंग जो है वो सपोर्ट करती है उस कंटेंट डिलीवरी जो आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो। सो सिमिलरली रोमांस के होने के लिए, अब रोमांस का मतलब ये है कि भाई अ स्टोरी दैट इज स्लाइटली फार्सिकल, a story where the things will seem to be slightly improbable, the story where the characters are slightly unhuman, or slightly what we can say extraordinary, or more heroic, or more idealistic, more capable of doing the things, sometimes possessing with supernatural qualities, sometimes possessing with extraordinary qualities which are not probable in the human beings। so इन सब चीजों के लिए, और इस प्लॉट कंस्ट्रक्शन में भी आप देखोगे तो वो देर आर लैप्सेज ऑफ टाइम, वन वन सीन इज ऑफ टुडे एंड द अदर सीन द नेक्स्ट, द वेरी नेक्स्ट सीन ऑफ 20 years लेटर। तो ये जो इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए आपको ये समझना है कि यू आर वॉचिंग अ प्ले, यू आर वॉचिंग और यू आर रीडिंग अ लिटरेरी पीस, दैट्स इट, एंड एनीथिंग कैन हैपन एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न। तो उस रोमांस की पर्टिकुलर सेटिंग अगर बिल्कुल रियल होगी तो फिर वो सपोर्ट नहीं करेगी, वो बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं करेगी, जिसको आप ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भी कह सकते हो। बैकग्राउंड इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स।
उस पर बैकग्राउंड भी एक आती है। ठीक। तो अब यहाँ पे आपकी सेटिंग जो होगी या सीन जो होगा पर्टिकुलरली, वो कैसा होगा? अननोन प्लेस है, फार ऑफ प्लेस है, रिमोट डिस्टेंट, रिमोट प्लेस है। अब रिमोट या अननोन या फार ऑफ, इतनी फार ऑफ कि इट इज नॉट एक्सेसिबल। जो सीन है वो ऐसी जगह कर का है जहां पर नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स की एक्सेस नहीं होती, या जो नॉर्मली हम इस तरह की जगह में वी डोंट एक्सपेक्ट और इमेजिन द हैबिटेशन। आप वहाँ पे कोशिश भी नहीं करते, ना ही एक्सपेक्ट करते कि यहाँ पे कोई लोग रह भी रहे होंगे। जैसे रिमोट एरियाज में ट्राइबल कम्युनिटीज होती है, और वो बहुत एक दो फैमिली है, दो चार फैमिली है, या फिर इस तरह का सीन है। तो वो सेटिंग बिल्कुल एग्जॉटिक सेटिंग आपकी हो जाती है आपकी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए। या फिर ऐसी नॉन एग्जिस्टिंग इमेजनरी सेटिंग। ये सारी प्लेसेस, सारे आपको ड्रामाज में पर्टिकुलरली तीन ड्रामाज की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसी है, जैसे सिम्बलिन, अर्ली ब्रिटेन। अर्ली ब्रिटेन, so early that you can hardly reach there, you can hardly have an access to this place। इसकी सेटिंग क्या है? ये सिसली और नॉन एग्जिस्टिंग। सो दिस प्लेस इज ऑल्सो, और दिस प्लेस कैन ऑल्सो नॉट बी फाउंड इजीली। ये भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप आसानी से इस प्लेस को लोकेट कर ही नहीं पाओगे। द थर्ड, द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का आपका कोई ऐसा मेडिटेरियन, जो मेडिटेरेनियन सी है उसके पास में वेस्ट इंडियन आइलैंड कोई। अब whether it really exists or not, this is also the matter of debate, and then we have simply assumptions. The people have assumptions on the basis of what is written and how the plane, how the island is described। जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन मिलता है उससे सिर्फ आप एज्यूम करते हो, assumptions करते हो कि भाई this could be the place, or this place could have been near this particular island or near this particular प्लेस। वो एक आपका गैस वर्क ही होता है, बाकी कुछ नहीं। वेस्ट इंडियन आइलैंड। तो अगर तीनों प्लेस की हम बात करते हैं तो तीनों प्लेस में जो सेटिंग है वो सेटिंग अपने आप में एक अलग सा कैरेक्टर है। सेटिंग इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले और स्टोरी। ये आप हार्डी के यहाँ, या फिर जो रीजनल आर्टिस्ट होते हैं, रीजनल नॉवलिस्ट और रीजनल स्टोरी टेलर्स जो होते हैं, वहाँ पे तो सेटिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेटिंग प्लेज yet another character in the story, just like हार्डी के यहाँ जो एडगन हीथ है, इट इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी एंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑन द कैरेक्टर इन द स्टोरी। All the other characters are motivated, influenced, affected, affected by this locality. Locality has much to do in their lives, how their lives changes or takes place, the things happen in their life is or are contributed by this place। ऐसे ही बोस्टन, नॉर्थ ऑफ बोस्टन फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, योकनपतावा काउंटी फॉर फॉकनर, मालगुडी जो ये साउथ ऑफ मैसूर, ये आर के नारायण के लिए, मतलब जो भी रीजनल आर्टिस्ट है उनके लिए सेटिंग एक कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट वो करते हैं। सो रोमांस में सेटिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेटिंग जो एपिक्स में और इस तरह के बैलेट बैलेट जो कि रोमांस की तरफ इंक्लाइन अगर होगा, तो वहां पर वो सब ये सेटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। प्रोज रोमांस कोई आपको याद है? प्रोज रोमांस, वर्स रोमांस तो आपके एनी स्टोरी दैट इज समवेयर इन बिटवीन एन एपिक एंड ए बैलेट। वो आपके ऐसे बहुत सारे, मतलब जो द स्टोरीज इन वर्स दैट हैव बीन रिटन इन इमिटेशन ऑफ एपिक। ट्रू एपिक तो क्लासिकल एपिक होने के लिए तो आपको अलग कन्वेंशन है, हाउ एवर दे हैव ट्राइड टू प्रेजेंट सम स्टोरी। सो ऐसी कौन सी स्टोरी आप इमेजिन कर सकते हो जो कि प्रोज रोमांस की कैटेगरी में आएगी? एक तो टॉमर
थॉमस मोर्स यूटोपिया, वो एक प्रोज रोमांस की कैटेगरी में आ जाएगा। आर्केडिया वो पेस्टोरल रोमांस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। ऐसी वर्स रोमांस, ऐसी फिर ड्रामेटिक रोमांसेस। फिर आती है फिर एक डिस्टेंट वर्जन है रोमांस का, मतलब एंटी रोमांस। जैसे आप डिस्टोपिया जो एक्सपेक्ट करते हो, डिस्टोपियन जो सेटिंग होती है, डिस्टोपियन सेटिंग इज एंटी यूटोपियन और एंटी रोमांस, वो है। इसके बाद में आती है आपकी बात प्लॉट कंस्ट्रक्शन। प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोमांस। प्लॉट कंस्ट्रक्शन में अभी वी हैव स्टार्टेड विद द प्लॉट कंस्ट्रक्शंस ओनली, द थिंग्स आर फैंसीफुल। फैंसीफुल, अनरियलिस्टिक, improbable, the the series of incidents or the events that take place during the course of the story seem improbable sometimes, irrelevant other times, imaginary other times, and fanciful other times, exotic other times। exotic मतलब वो चीजें ऐसी जैसे मोर देन रियल मतलब जो आप रियलिटी में एक्सपेक्ट नहीं करते और ना ही आपको ऐसी मिलती है, उस तरह की सेटिंग्स। या फिर एक टर्म से आपको पता चल जाएगा, दिस काइंड ऑफ थिंग कैन ओनली हैपन इन द स्टोरी। ये एक नॉर्मल स्टोरीज में तो पॉसिबल है ही, नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। कैरेक्टर्स डोंट बिहेव लाइक दिस इन नॉर्मल लाइफ। द स्टोरी और द टर्न ऑफ द इवेंट्स डू नॉट हैपन इन नॉर्मल लाइफ। ऐसा होता ही नहीं, इस तरह की चीजें होती नहीं है, तो फिर क्या समझा जाए। ठीक। और नो रिलेशन व्हाट्स एवर, कॉज एंड इफेक्ट, theory of probability, theory of rationality does not work here. Now we do not expect the story to be rational. We do not expect that the happenings of the events, the series of events that take place, happening in a very rational way। rational way तो क्या हुआ, linear way। linear way मतलब one thing leads to the happening of other। one plus two plus three plus four, this is how the things can go। one event leads to the other leads to the other, and then so on, everything just like we have seen the plot construction, exposition and then the complication and then the result in crisis, and then after crisis or climax the things start unfolding, the story ends। here नॉन लीनियर प्लॉट भी हो सकता है यहाँ पे। और नॉन लीनियर से ज्यादा जो चीजें हैं वो एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, or anything happens in any character's life without giving a warning or some indication or some giving some clue for the expecting। ना तो वो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर पा रही है कि वी हाउ कम इट इज पॉसिबल, ऑल ऑफ सडन द थिंग्स दे टेक दिस शेप। तो वो सारी चीजें आपको नहीं मिलती। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, टेम्पेस्ट का एग्जाम्पल लीजिए। सबसे पहले टेम्पेस्ट में क्या है, द किंग वॉज एग्जाइल्ड एंड he was a king. Before he was exiled, Prospero was a king, and we don't have any clue or information whether he studied black magic or magic there being a king। कहीं कोई ऐसा ना तो मेंशन है और ना ही कुछ ऐसा दिखा हुआ है इनडायरेक्टली डायरेक्टली। बिफोर एंटरिंग द आइलैंड और बिफोर हैबिटेटिंग दैट आइलैंड और बिफोर एग्जाइल, प्रोस्पेरो वॉज ए विजार्ड, प्रोस्पेरो वॉज ए मैजिशियन। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन ही केम टू द आइलैंड। एग्जाइल के बाद में भी कहाँ पे आया, एग्जाइल के बाद में हम नॉर्मल कंडीशन में किसको सोचते हैं कि भाई किसी दूसरे शहर में चला जाएगा, किसी दूसरे कंट्री में चला जाएगा। नॉर्मली इट डज नॉट हैपन दैट द पर्सन हु हैज बीन एक्साइल्ड हैपेंस टू कम ऑन एन आइलैंड, आइलैंड दैट टू इज अ मैजिकल आइलैंड। अब वो ऐसा आइलैंड जो कि ऑलरेडी इट वाज इन द डोमिनेंस ऑफ द विच साइकोरेक्स। और वहां पे उस मैजिकल आइलैंड जो कि एक पैरानॉर्मल या फिर
सुपर नेचुरल एलिमेंट ही कही जाएगी वो विच, और उसको डिफीट कर देता है। उसको डिफीट करके एंड देन ही सेट्स द आइलैंड एंड इट्स क्रीचर फ्री, एंड देन ही स्टार्ट्स डोमिनेटिंग हिमसेल्फ। अब डोमिनेंस तो रहेगा आइलैंड पे, लेकिन अब हमारा रहेगा। तो अचानक से मतलब हाउ कम इट इज पॉसिबल, वेयर डिड ही लर्न ऑल दिस थिंग। आप नॉर्मल कंडीशंस में देखते हो, डॉक्टर फास्टस का एग्जांपल देखिए, सो द थिंग्स सीम प्रोबेबल। He had the urge for or the quest for learning. He studied every subject, and then after having been dissatisfied with all sorts of learning, he resorted for black magic, necromancy, and then he studied it. It was, it took time. It took time, and then it presented the things for him. तो वो लर्न किया, स्टडी किया, एंड देन ही गॉट द मास्टरी इन इवोकिंग, और ही गॉट सक्सेस इन इवोकिंग द स्पिरिट ऑफ मेफिस्टोफिलिस। तो वो प्रोबेबल लगती है। यहाँ पर क्या है, अब आप समझिए कि प्रोस्पेरो आया है और वो अचानक से सब चीजें मैजिकल होना शुरू कर दी। आया है, उसने विच को डिफीट किया, कैलिबान को अपने अंडर किया, सारे एरियल को फ्री किया, एरियल को अपने अकॉर्डिंग काम पे लगा दिया, और फिर एरियल से ही वो सारी चीजें जो सी स्टॉर्म करवाया वो भी। तो ये चीजें मतलब एकदम से डाइजेस्ट नहीं होती अगर आप रैशनल अपील से किसी भी ड्रामा को देखते हो तो। स्टोरी में वो फैंटेस्टिक स्टोरी, फैंटेसी लैंड, ये इस तरीके से देखते हो, जो थिंग्स सीम एंटरटेनिंग, दे आर मोर एंटरटेनिंग देन रियल। सो ये चीजें जो है टेम्पेस्ट में, द इवेंट्स, इवेंटफुल जो है वो कैसी है, मैजिकल इवेंट्स है। रियल लाइफ में कुछ होगा तो वो कैसे होगा, इट विल हैव अ कॉज, एवरीथिंग हैपेंस विद अ कॉज, एवरीथिंग हैपेंस विद डेफिनेट रीजन, एंड देन द अदर, द फॉलोइंग थिंग इज द रिजल्ट। वो रिजल्ट और इफेक्ट ये दोनों डेफिनेटली साथ साथ चलते हैं, बट एज फार एज these romances are concerned, we don't find any relation between cause and effect. The things start happening, they happen, and then we cannot find whether they have really some reason or not. All we have the things when they have happened. बस ये है कि आपके सामने वो चीजें हो चुकी हैं। तो इसमें ज्यादा रैशनैलिटी मत लगाइए कि कैसे हुई है, क्यों हुई, कहाँ से आया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। वो सब चीजें क्या है, स्टोरी का पार्ट है। स्टोरी में आप बहुत सारी चीजें तो पता नहीं चलती है कि कब हुई, ऐसा कब हुआ, ये कब आया कैरेक्टर, ये कैसे हो गया। तो वो सिंस इट इज ए स्टोरी वी कैन इमेजिन, और वी कैन, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इसी को ही कहते हैं कि भाई आप, यू डोंट हैव टू अप्लाई योर रैशनैलिटी टू द फुलेस्ट, अदरवाइज यू विल किल द पर्पज एंड द एंजॉयमेंट। पर्पज ही क्या है, एंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है। इफ यू ट्राई टू पुट योर रैशनैलिटी फर्स्ट, so you will keep putting your rationality, you will not enjoy the piece of literature जो भी है, whether you are writing, means sorry, reading a book or watching a play or watching some movie or serial or whatsoever। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे टेम्पेस्ट का बताया सर, टेम्पेस्ट में कैसी चीजें होती है, मैजिकल हैपनिंग्स, ठीक, मैजिकल हैपनिंग्स दे स्टार्ट हैपनिंग, एंड ऑल वी हैव टू डू इज टू बिलीव कि हाँ, एग्जाइल के बाद में इसको आसानी से एक ऐसा प्लेनेट मिल गया, एक ऐसा आइलैंड मिल गया प्रोस्पेरो को, और इसने मतलब ही डिड समथिंग, ही लर्न हिज आर्ट, जो भी वो ब्लैक मैजिक किया, जो भी विच क्राफ्ट या विजार्डरी जो भी थी, ही लर्न एंड देन ही सेट द प्लेनेट और द आइलैंड फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ दैट विच साइकोरेक्स। ये मान लीजिए शिपरैक हुआ तो वो जादू से हो गया, तो वो हो गया, मान लीजिए उसको, उसमें कोई कॉज एंड इफेक्ट या कुछ रैशनैलिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, सिम्बलिन में, द प्रिंसेस वॉज एबडक्टेड एंड देन शी kept remain abducted for 20 years. How come it is possible that the person who has been kidnapped is kidnapped for 20 years?
नॉर्मली किडनैपिंग करने का कोई पर्पज होता है? आप रैंसम मांगने के लिए किडनैप करते हो, या फिर उसको मारने के लिए किडनैप करते हो, बदला लेने के लिए किडनैप करते हो, इन ऑर्डर टू मेक द पीपल रियलाइज दैट यू हैव किडनैप्ड, एंड देन you want to teach a lesson to the family members that this is how I suffered, and then this is why you have to suffer. कुछ कॉजेज हो सकते हैं, वो कॉजेज कब मैनिफेस्ट होंगे? वो हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने, इस सब में हो जाएगा. इफ यू कीप पर्सन किडनैप्ड, और यू कीप हिम किडनैप्ड और हर किडनैप फॉर 10 years, 20 years, तो उसका क्या मतलब हुआ? अगर एक किसी भी आप एंटिटी को किडनैप करने के बाद में और 1 साल तक नहीं मिलता है, तो आप क्या समझते हो? वेदर द पर्सन इज किल्ड, और मतलब पर्सन इज किल्ड प्रोबेबली. अगर नहीं मिला, वो नहीं वापस आया, और ना ही आपने कुछ डिमांड की, यू डिड नॉट आस्क फॉर द रैंसम. यू किडनैप सम पर्सन एंड यू डिड नॉट आस्क फॉर रैंसम. किडनैप किया क्योंकि बस किडनैप किया, ऐसे मजा आ रहा था. तो मजा क्या आ रहा था? आपने एक खर्चा और बढ़ा लिया अपने आप. अब उस बंदे का जिसको किडनैप किया है उसको खाना खिलाना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. सो यू हैव सिंपली एडेड द एक्सपेंसेस. पर्पज आपका क्या है? यू डोंट नो. You have kept the person remain in your custody for 20 years. So 20 years is a very huge time. उस टाइम तक वो प्रिंसेस किडनैप्ड ही रही. नो बडी कुड एवर नो. ना वो बाहर निकल के आई, ना किसी को कोई क्लू मिला, ना ही लोगों को ये लगा, लोगों को लोग भूले कि वो मर चुकी है, नहीं मर चुकी है. तो ये सारी चीजें ऐसी है कि मतलब यू डोंट डाइजेस्ट देम इन इन अ रियलिस्टिक वे. लेकिन स्टोरी है तो स्टोरी में आपको लगा कि 20 years का तो बताया हुआ है, 20 years तो 20 years, आसानी से स्टोरी में तो हो ही जाते हैं. हमारी बॉलीवुड की मूवीज में तो एक गाने में सारा पूरी जनरेशन तैयार हो जाती है. बच्चा पैदा होकर के, वो बड़ा होकर के, उसको जो मिलना था, वो हीरोइन, वो एक ही गाने में सब कुछ मिल जाता, मोटिव भी मिल जाता है एक ही गाने में सब कुछ. तो द थिंग्स स्टार्ट सो फास्ट इन मूवीज. तो वो भी क्या है, एक रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांस इज देयर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टोरीज, ये जब चलती है बात. फिर विंटर स्टेल, जो कैरेक्टर हरमाइनी, उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या, हरमाइनी, वो उसको भी हिडन कंडीशन में रखा, और वो शी रिमेन इन हिडन कंडीशन फॉर 16 years. सो शी रिमेन फॉर एबडक्शन फॉर 20 years, और कंसीलमेंट ऑफ हरमाइनी फॉर 16 years. अब कंसीलमेंट फॉर 16 years, किडनैपिंग, एंड देन द स्टेट ऑफ किडनैप रिमेनिंग फॉर 20 years, ये सारी चीजें कैसे लगती है? इम्प्रोबेबल टाइप की लगती है. तो ये भी इसी जो जॉनर है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक आप समझिए. अगला पॉइंट लीजिए. फिर इसमें आता है क्या कहना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन फॉर द प्रोटैगनिस्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जो माइनर कैरेक्टर्स है, कॉमेडी का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है. दे क्रिएट कॉमेडी. जो माइनर कैरेक्टर्स जस्ट लाइक क्लाउन्स, और जितने भी सब्सिडियरी कैरेक्टर्स हैं, दोज हु डोंट हैव एनी डायरेक्ट लिंक विद द कॉमेडी, दे हैव देयर ओन रोल इन द स्टोरी. दे मतलब अंडर प्लॉट और सब प्लॉट के थ्रू वो जो ज्यादा कॉमिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे ही आते हैं. यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है वो कॉम्प्लिकेशन ही है. सो द कैरेक्टर रिमेन्स इन अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन फॉर द लेंथ लेंथ ऑफ टाइम. जैसे इन सारे पेज में भी दिखाया है कि जो वो हरमाइनी है, या फिर प्रोस्पेरो, प्रोस्पेरो पूरी जिंदगी उसकी कॉम्प्लिकेशन में ही गुजरी, लास्ट में आकर के अब चीजें उसके अकॉर्डिंग होना हुई है. सो द स्टेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिमेन्स existent for the length of time for the main character in almost all the tragic comedies, or particularly these three.
ट्रेजी कॉमेडीज वी आर टॉकिंग अबाउट, ये चीजें होती हैं। फिर एटमॉस्फेयर तो आपको ऑलरेडी बता दिया। एटमॉस्फेयर किस तरह का रहता है, एक सस्पेंस, सस्पेंस तो खैर इसमें ज्यादा क्या सोचोगे आप, एक अनरियल, इमेजनरी और सुपर नेचुरल, ये सारी चीजें आपको इसमें आ सकती है। एक एटमॉस्फेयर, सुपर नेचुरल एलिमेंट या सुपर नेचुरल जो इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस टू सर्टेन एक्सटेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम अदर एलिमेंट्स विच आर नॉट नॉर्मल। वो एक जो एटमॉस्फेयर है वो सीरियस एटमॉस्फेयर वो बना ही रहता है। मतलब बीइंग अ ट्रेजिक कॉमेडी, द एटमॉस्फेयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स सीरियसनेस, तो वो सीरियस भी है, सीरियस है, मिस्टीरियस है, सुपर नेचुरल, ये सब चीजें कॉमन एटमॉस्फेयर पूरी स्टोरी का वो हो जाता है। फिर कैरेक्टराइजेशन, ये माइनर पॉइंट्स हैं। कैरेक्टराइजेशन, characters are not individual or characters are not dynamic, just like means these stories are not completely or primarily character centric, they are plot centric। जो कॉमेडी में बताया, कॉमेडी और ट्रेजिक कॉमेडीज में ये प्लॉट सेंट्रिक ज्यादा है और कैरेक्टर सेंट्रिक कम है। कैरेक्टर सेंट्रिक अगर शेक्सपियर की कौन सी जॉनर आप फाइंड आउट करोगे तो ट्रेजेडी एंड हिस्टोरिकल प्ले, रोमन प्ले हिस्टोरिकल प्ले में ही आ जाते हैं। तो दोनों को आप उसमें जो कैरेक्टर सेंट्रिक है, वेयर द कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द हिस्ट्रीज, हिस्टोरिकल प्ले, रोमन प्लेज एंड ट्रेजेडीज, जो ग्रेट ट्रेजेडीज है उसमें आपका कैरेक्टर इज द फोकस, कैरेक्टर इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर ऑन विच ऑल द अदर थिंग्स रिवॉल्व, अराउंड ऑल द अदर थिंग्स रिवॉल्व। Character, main character is the character around which, around whom all the other characters have their existence. However, in tragicomedy or in comedy, it is plot driven, the story driven. Main thing is story. So characters are mainly types. जो flat type के characters, if the character remains in a complicated situation, so he remains or she remains complicated in a complicated situation throughout. There is no dynamism in his or her character, as has been seen in all these plays. प्रोस्पेरो तो प्रोस्पेरो का जो एक किंग, एज ए विजार्ड, एज ए फादर, वो एक ही तरह से चलता रहा। कोई ऐसा मतलब साइकोलॉजिकल पीप, देर इज नो साइकोलॉजिकल पीप इनटू द कैरेक्टर ऑफ दीज प्लेज, जस्ट लाइक द कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ हेमलेट और मैकबेथ, अथेलो, मतलब वी हैव, और रिचार्ड थर्ड, एंटोनी, जूलियस, so Julius Caesar. So these characters, they give you a sneak peek into their character, into their soul। एक वो एक डिफरेंट लेवल तक आपको ले जाते हैं सोच में। यहाँ पर जो है क्योंकि स्टोरी ड्रिवन है तो कैरेक्टर पे इतना फोकस है ही नहीं। यू डोंट find yourself very much interested what the character is thinking and what is he undergoing inwardly, what is the internal conflict। ऐसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट टाइप की या सॉलिलोकी टाइप की आपको चीजें ज्यादा नहीं मिलेंगी। तो वो कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट टाइप्स फ्लैट और अनइंडिविजुअलाइज्ड टाइप के होते हैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चाहे वो इमोजन के कैरेक्टर लीजिए, ये सब क्या है, एक ही तरह के सिंग सेल्फ सेम टाइप के कैरेक्टर्स हैं, शोइंग नो इंडिविजुअलिटी व्हाटसोएवर। फिर आता है इन्वॉल्वमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपर नेचर, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यहाँ पे आपको तीन प्लेस का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें आपको काफी मिल जाएगी। जैसे सिम्बलिन में विजन्स है, विजन्स तो किसमें है, सिम्बलिन में। Visions of gods and goddesses. There are certain characters who have the visions of gods and goddesses. Sometimes they feel
in a complicated situation and then they have visions of gods and goddesses or angels. So वो है यहाँ पे. गॉड्स एंड गॉडेसेस का जी स्मॉल क्यों है? व्हाट डज इट सजेस्ट? कैपिटल जी कभी भी प्लूरल में नहीं होगा. द गॉड मीन्स द अलमाइटी, द सिंगल एंटिटी. और गॉड्स एंड गॉडेसेस का मतलब क्या है? वो दे आर डिफरेंट डेटीज. जो भी मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर जैसे हिंदू मिथोलॉजी में आप देखिए कि पूरा एक वेब ऑफ कैरेक्टर्स, सो दीज कैरेक्टर्स आर गॉड्स एंड गॉडेसेस, डेटीज. ठीक. ऐसे ग्रीक मिथोलॉजी में आप देखोगे, सो देर आर वेरियस कैरेक्टर्स, वेरियस गॉड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स. गॉड ऑफ फायर, गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ दिस और गॉड ऑफ दैट. सो सिमिलरली टू द हिंदू मिथोलॉजी आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी. तो वहां पे द कॉन्सेप्ट इज गॉड्स एंड गॉडेसेस रादर देन वन गॉड. ठीक. तो ये देर आर सेवरल विजन्स टू द कैरेक्टर. द कैरेक्टर फील that they are talking to the angel of God or gods, certain gods, whenever they fall in some complication. टेम्पेस्ट में देखिए, which Sycorax, Ariel, the commanding spirit of Prospero, and hybrid character just like Caliban, और विच भी हो गया, और विजार्ड. मतलब प्रोस्पेरो वाज ए विजार्ड हिमसेल्फ. तो ये अब विजार्ड है, मतलब ही इज नॉट अ नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पर्सन. एंड द काइंड ऑफ थिंग्स ही डज इज आल्सो नॉट नॉर्मल. तो वहां पे वो इन्वॉल्वमेंट, ये इन इन सारी चीजों का आपको दिखेगा. विचेस, गोस्ट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी. विंटर्स टेल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. If you are asked where the Delphic Oracle or in which of the Shakespearean plays you can find the presence of Delphic Oracle, so it is the Winter's Tale. ये कई बार क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन ये है. अब oracle क्या होते हैं? In Greek mythology, there is a means regular presence of oracle. Oracle is a guiding force to the warrior, the king, or the protagonist in the story. Whatever the king or the warrior tries to do has something to do with the consent of the oracle. Oracle is a divine presence that can be found on certain hill. और जब भी किसी वॉरियर को कुछ, किसी भी तरह का वॉरफेयर में इंडल्ज होना है या फिर कुछ करना है, सो they go and then seek the guidance of that particular oracle. After performing some rituals, the voice appears. Voice, ये वो unseen presence है. Oracle is never in the say in the shape of some human being or a, मतलब some shape. Oracle is always, जो true oracles होते हैं वो क्या है? They are in the form of voice. वो voice आपसे communicate करती है. Voice कब आती है? When you perform some rituals. So you evoke, you cause the oracle to appear before you, talk to you, or then you seek guidance that we are trying to do, we are going to wage this war. So what are the chances of success, whether we this time we will succeed in this war or not? If oracle suggests that you should refrain yourself from indulging in warfare, तो वो रोका जा सकता है. If a character does not listen to the oracle, तो फिर क्या होता है? उसी को कहते हैं जो निमेसिस. निमेसिस का कॉन्सेप्ट भी आपने सुना होगा. तो निमेसिस इज द रिट्रीब्यूशन. रिट्रीब्यूशन. और जब ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस क्या है? जो आपका कैरेक्टर ओपनली जब मना कर दे या फिर उसको डिसओबे कर दे, तो डिसओबे किसको करेगा? ये ओरेकल्स इज वन ऑफ देम. ओरेकल या डिवाइन फोर्स या फिर गॉड्स एंड गॉडेसेस या जो गाइडिंग फोर्स है,
अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो वो दैट रिजल्ट्स इन एन इंसोलेंट बिहेवियर, इंसोलेंट बिहेवियर रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन और द फेलियर ऑफ दैट कैरेक्टर। तो वो ओरेकल का बहुत बड़ा रोल क्लासिकल मिथोलॉजी या ग्रीक मिथोलॉजी में तो बहुत ज्यादा आपको स्टोरीज में मिलेगा। अगर आपने हॉलीवुड की कुछ मूवीज देखी है, ट्रॉय में है ये कॉन्सेप्ट। और एक मूवी आई थी 300, उसमें है, सिंस ही डिड नॉट लिसन टू द कमांड ऑफ द ओरेकल ही हैड टू सफर एंड सफर डिजास्ट्रसली। पूरा का पूरा उसकी जो मतलब बीइंग हैविंग बीन एबल वॉरियर, फिर भी वो बेचारा हारा। तो क्यों? क्योंकि इसने ओरेकल का कहना नहीं माना। तो वो डेल्फिक ओरेकल, डेल्फिक क्या है? इट्स अ हिल साइड। सो ओरेकल्स दे नॉर्मली फाइंड आर फाउंड ऑन सम हिल्स और सम माउंटेन्स। तो कैरेक्टर को वहां पे जाना होता है, रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं, एंड देन द वॉइस मेक्स इट्स प्रेजेंस एंड देन यू कैन कम्युनिकेट एंड फाइंड द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। वो एक इन्वॉल्वमेंट सारी चीजों का यहाँ पर जनरली होता है। ठीक। लास्ट एक एलिमेंट आता है इसमें, स्पिरिट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। टॉकिंग अबाउट कॉमेडी, सो कॉमेडी रिजल्ट्स इन हैप्पी एंडिंग। समटाइम्स हैप्पी एंडिंग सीम्स फोर्स्ड and expected, predictable. You feel that if it is a comedy, so it will result in happy ending. The hero and heroine will definitely meet. The wrongs, रॉन्ग्स का तो यहाँ पे इतना ज्यादा कोई ऐसा होती नहीं। कॉमेडी में तो इतना ज्यादा रिवेंज विवेंज टाइप की कोई चीजें होती नहीं, तो वो वहाँ पे अप्लाई कम ही होती है। वो सिर्फ ये है कि हीरो एंड हीरोइन और द कैरेक्टर्स दे फॉल इनटू सम कॉम्प्लिकेशन, द कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट अनरेवलिंग और अनफोल्डिंग एंड देन दे result in resolution results in happy ending, that's it। लेकिन ट्रेजिक कॉमेडी में क्यों है? क्योंकि वो हाफ ट्रेजेडी हाफ कॉमेडी। सो देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉन्ग्स एंड राइट्स। यहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई द मेन कैरेक्टर हैज बीन डन सम ग्रेट रॉन्ग, जस्ट लाइक हरमायनी और इमोजिन और प्रोस्पेरो। इन कैरेक्टर को लेते हो तो आपको क्या लगता है कि भाई दे हैव बीन डन सम रॉन्ग। प्रोस्पेरो को एग्जाइल कर, a king has been exiled from his own kingdom, his kingdom has been usurped। ठीक। सो उसके बाद में लास्ट में वट एवर ही डज सीम्स मॉरली सस्टेन्ड। अब ये यहाँ पे क्या है? रिकॉन्सिलेशन, जो स्पिरिट ऑफ रिकॉन्सिलेशन क्या है? ये मॉरली जस्टिफाइड rather than expected or predicted। The story is reconciled, means the life of the character, main character, seems to be justified in the end. Whatever he gets or she gets seems to be justified in the comparison of what he has or she has suffered। आपको लगता है कि भाई इसके साथ ये क्यों हुआ? क्यों ठीक है? क्योंकि इसने इतना सफर किया है। प्रोस्पेरो का आप केस देखिए तो आपको लगेगा कि भाई व्हाट ही हैज डन, ही हैज आल्सो डोमिनेटेड द आइलैंड। Earlier, it was dominated by Sycorax. Sycorax was the natural descendant, and then he came. He was the alien force. He was the invader कहेंगे, तो एक तरीके इन्वेडर हुआ। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि भाई प्रोस्पेरो के साथ क्या हुआ, why he had to go to this extent, why he had to learn wizardry, why he had to create this complete scene, why he had to create cause the sea storm in the beginning। So he wanted to make the people realize he did not kill anybody. He could have killed those who have done wrong to him. He could have killed them. However, he did not do. He merely created the scene just like in order to make them realize of their mistakes. And after making them realize, वो जस्टिफाइड हुआ। हमें लग गया कि हाँ भाई इसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और एज सच इन लोगों को एहसास कराना चाहिए था। हो गया। एंड आफ्टर दैट ही डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस विजार्डरी ऑल्सो। जब लास्ट में स्टोरी खत्म होती है तो वो ही हैज ब्रोकन हिज मैजिकल वैंड and then he has completely given up all his magic art because he learned this magic in order to survive there on this island and to make the people realize their mistake। तो वो जो रिकॉन्सिलिएशन जो होती है वो आपको लगती है जस्टिफाइड।
मिरांडा की शादी फर्डिनांड से, अब मिरांडा की आप समझ लीजिए, व्हेन शी केम विद प्रोस्पेरो ऑन दिस आइलैंड, शी वाज बेयरली 3 इयर्स, 3 इयर्स का ये शायद उसमें दिखाया हुआ है। एंड शी वाज रेज्ड ऑन एन आइलैंड वेयर नो ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट हर फादर, कोई और नहीं है। अदर क्रीचर्स है वो कैलिबन, कैलिबन हैज ऑलवेज एन इविल आई ऑन हर, वो सिलेक्टिव आईज, मतलब ही ऑलवेज वांट्स टू मोलेस्ट हर, ही ऑलवेज वांट्स टू पजेस हर। तो उसका कैरेक्टर ऐसे ही रहा। बाकी एरियल, एरियल इज ए स्पिरिट। तो और कोई उसने ह्यूमन कैरेक्टर देखा भी नहीं, तो शी हैज बीन कंप्लीटली प्रिवेंटेड फ्रॉम द सोसाइटी। अब उसको अगर वो अच्छा होता है उसके साथ, तो दैट इज मॉरली जस्टिफाइड। शी डिजर्व्स, प्रोस्पेरो डिजर्व्स टू गो बैक टू हिज किंगडम, ही डिजर्व्स द रिटर्न ऑफ हिज किंगडम। सो इस तरीके से आप देखोगे तो ये रिकॉन्सिलेशन जो है वो दैट इज नॉट फोर्स्ड, दैट इज नॉट unnatural, that seems to be morally justified, natural and justified, natural, justified and expected। एक्सपेक्टेड का बाद में आप ले सकते हो, ठीक। सो दिस इज हाउ यू कैन sum up, means this is how the romance, the concept of romance can be understood। and ये जो पॉइंट्स है, आप इनको पॉइंट्स को जितने भी है उनको स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट करके, और जो रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको याद करके अपने नोट्स बना लेना। ये भी आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्मल आंसर्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये हेल्पफुल होंगे।